Assalamu alaikum students. In the last class we have discussed about the operating systems, and we have also discussed what is an operating system, what are the types of an operating system. Similarly, I have also discussed and explained different functions of operating systems, like what is HCI, what is human computer interface, what is multitasking, and all that are mentioned in your books. So we have already discussed a number of services and the functions that operating system has performed. Now today's topics is little bit different. Now the point is that now we'll discuss about interrupts and buffers. Interrupts basically are the signals they are sent from the devices from a software to a processor. For example, अगर हम ये देखते हैं, let's take an example. Right, so if we have got that if we take this is a human being and there are multiple of human beings are standing at one place, and similarly what happens, basically interrupt signal, what happens, there is a processor, okay, and which is called a CPU. Okay, now what happens when, for example, if this is A, this is B, and this is C. Now if A is communicating with CPU and same as it is, B is also communicating at the same time, and CPU is busy in resolving the issues and tasks that has been assigned by A and B respectively, but suddenly there is another device that comes in between and creates an interrupt to the CPU, and this C has the higher priority. Now so that means higher priority means that the other two devices, like जो A है और जो B है, it will be stopped and the C will be executed first because the C has higher priority. So coming back onto the book, that this signal from one device, from the software to the processor, so this will cause a processor to stop temporarily what is doing and services, and it basically creates an interrupt. It's just like it कि अगर दो शख्स हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, if someone comes in between you and the other person, so basically it will interrupt your conversation, so that the third person will creating an interrupt signal between two of you. So this is the same thing, the same phenomena is happen in computers also. If CPU is busy for resolving any particular task that has been assigned by an operating system or devices, so if the most important task comes in between the two other tasks, so it will create an interrupt, and that interrupt basically is a signal form, of which is, that's why the other two the systems hai, that stops for temporary purposes, temporarily, and as soon as the other thing the C will resolve, the A and B will resume after that. Now
interrupts allows computer to carry out many tasks or to have several windows open at the same time. Now अब इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे आप टास्क यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है. अगर मैं आपसे बताऊं कि ये मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस और हर प्रोग्राम सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो हर एक को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है. और हर एक के साथ अब होगा क्या कि बेसिकली कैरी आउट वन और मोर टास्क. अब ये एक टास्क जो है बेसिकली ए जो है फर्दर आगे हो सकता है बहुत सारे टास्क में डिवाइडेड हो. सिमिलरली ये भी हो सकता है, तो हो सकता है ये दे आर फर्दर इनटू डिवाइडेड इनटू फर्दर मोर टास्क. सो फॉर एग्जाम्पल this is called for example the downloading of files from the internet or listening to music or doing research work or something. So if CPU is doing this task and this task comprises of multiple tasks like this, so it has to resolve the multiple tasks, sub tasks as well, in order to resolve this A. So अब basically it has to be handled very efficiently, and to handle this thing is जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट हैंडलर, ठीक है. दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट हैंडलर. इंटरप्ट हैंडलर क्या होता है? बेसिकली इट सेज दैट टू हैंडल द इंटरप्ट्स, ठीक है. जो चीज़ें इंटरप्ट हैंडलर होंगी वो सब उसको पूरा मैकेनिज्म होगा जो कि यहाँ के सारे जितने भी इंटरप्ट हैंडलर्स हैं उनको वो इंटरप्ट आ रही होंगी, उनको वो हैंडल कर रहा होगा. कैसे हैंडल कर रहा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर बी के इस सब टास्क को एग्जीक्यूट होना है और मीनवाइल अभी सिर्फ ए का ये वाला सब टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको ये होल्ड ऑन कराएगा और उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सीपीयू के पास भेज देगा. उससे ये होगा कि ये वेटिंग पोजीशन में चला जाएगा और ये एग्जीक्यूशन पोजीशन पर आ जाएगा. सो जैसे ही ये पूरा कंप्लीट होगा तो कमिंग बैक जो भी वेटिंग पोजीशन पर होगा वो वेटिंग पोजीशन वाला एग्जीक्यूट दोबारा होना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली द इंटरप्ट. नाउ द सेकंड मेन कॉन्सेप्ट इज दैट what is a buffer. Okay, now buffer is very important. Again the new topic. Buffer is basically used as a temporary memory area. These are essential in modern computers since devices are not very hardware devices, operate under much slower speed than the processor. अब कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट बफर का होता क्या है. कॉन्सेप्ट यह है कि एक टेबल है, ठीक है, एक स्पेस एरिया कह लीजिए. उस स्पेस एरिया के एक तरफ सीपीयू है, ठीक है, और दूसरे एरिया की तरफ डिवाइसेस हैं, ठीक है. अब होगा क्या, इसको हम कहते थे बफर. अच्छा, बफर इज जस्ट लाइक अ मेमोरी. मेमोरी कैसे एग्जीक्यूट होगी? सीपीयू जो होता है वो वेरी फास्ट, ठीक है, ये बहुत फास्ट होता है और ये सारी एग्जीक्यूशन जो होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो बहुत फास्टली एग्जीक्यूट करता है. डिवाइसेस जो हैं स्लो होती हैं, दे आर नॉट एज फास्ट एज सीपीयू. तो अब लेट सपोज एक यूज़र ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी प्रिंटर को, लेट सपोज ये प्रिंटर है यहाँ पर और प्रिंटर को इंस्ट्रक्शंस दी कि प्रिंट कर दो डिवाइसेस. तो सीपीयू ने क्या किया कि इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस किया और एक बफर मेमोरी के अंदर उसको सेव कर दिया, ठीक है. जैसे ही सीपीयू ने इसको बफर मेमोरी के अंदर सेव किया तो अब डिवाइस जो है क्या कहते हैं वो अपनी स्पीड के हिसाब से इस बफर मेमोरी से डेटा फैच करेगी और इसको वो यूज़ कर सकती है.
तो अब लेट्स सपोज ऐसा है कि अगर डिवाइस स्लो होगी तो वो उसको कोई पूरी परफॉर्मेंस जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर पूरा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सीपीयू को जो है डिवाइस को डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करना, उसको सिर्फ सीपीयू को क्या करना है, इट हैज़ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइल्स टू द बफर एरिया and devices will take that buffered instructions from the memory. So this is basically the area which is connected both from the CPU and the devices. That's how the buffer works. इसके पर्पज होते हैं. Now if there are lots of devices, फर्ज करें लेट्स सपोज अब एक CPU है, हर डिवाइस का एक बफर मेमोरी होती है. लेट्स सपोज इसका एक प्रिंटर है, ये हमारे पास प्रिंटर है और ये प्रिंटर है. इसी तरीके की हमारे पास और डिवाइसेस हैं, प्रिंटर भी है हमारे पास, स्कैनर है. ओके, ये स्कैनर आ गया हमारे पास. ये स्कैनर है ना. स्कैनर की भी एक डिवाइस होगी जो कि बफर मेमोरी होगी, और ये बफर मेमोरी जो है वो एक्चुअली ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये फिर इसके साथ कनेक्टेड है. तो अब सीपीयू से जो है वो डेटा सारा कहाँ जा रहा है, सीपीयू से डेटा जाएगा पहले बफर मेमोरी में और बफर मेमोरी से जाएगा फिर डिवाइसेस के अंदर. दिस इज बफर. ठीक है ना. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड इन स्पेशली इन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बफर की वजह से आपके सीपीयू के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत एफिशिएंटली मैनेज होते हैं. अगर आपके पास बफर होगा अच्छा और वर्चुअल मेमोरी होगी तो बेसिकली आपके जो डिवाइसेस हैं और सीपीयू है वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सकता है. क्योंकि अगर बफर जो है क्या कहते हैं नहीं होगा तो सीपीयू को उसके डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वेट करना पड़ेगा, और अगर सीपीयू को वेट करना पड़ा तो वो दूसरे टास्क को वो परफॉर्म नहीं कर सकता या उसको वो स्लोली परफॉर्म करेगा, क्योंकि सीपीयू जो है वो इंगेज होगा विद स्कैनर या वो प्रिंटर के साथ इंगेज हो सकता है. तो एट द टाइम अब क्या करना है, सबसे पहले कि सीपीयू जो है वो सबसे पहले बफर में कोई चीज़ रख दे और आप जो है या डिवाइसेस जो है वो अपने टाइम के हिसाब से अपनी स्पीड के हिसाब से उस बफर से वो चीज़ें उठा लें. सीपीयू मीनवाइल जो है वो कोई और टास्क कर सकता है. सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीयू. ये अच्छा, इस बफर को भी यूज़ करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो टू मैनेज दोज डिवाइसेस एंड बफर, it is very important for an operating system to collect all the buffers and connect all the buffers to the CPU and manage them very efficiently. ये एक पूरा प्रोसेस जो है इस चीज़ की जो मैनेजमेंट होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्लियर हो रही बात? आई होप सो. राइट. सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द बुक क्या लिखा हुआ है. If it wasn't for buffer, processor would spend the majority of their time in idle position waiting for the hardware to complete its operation. Now, अगर ऑपरेशन कंप्लीट करना हुआ तो बेसिकली इसको वेट करना पड़ेगा. ओके, बट द बफर्स आर एसेंशियली filled from the processor or memory unit while they are emptied for the hardware devices. Now, जैसे बफर जैसे फुल हुआ डिवाइसेस अपनी स्पीड के हिसाब से उसको एक्सेस करेंगी एंड देन द अमाउंट ऑफ द स्पेस will become empty and all the instructions from the buffer will go into the devices directly. Now this is an example and this is a flow of show how buffer and interrupts are used when a document is sent to a printer. Now it says that any data
टू सेंड टू प्रिंटर। अगर प्रिंटर को कुछ चीज़ भेजने के लिए है या नहीं है नो, द प्रोसेसर कंटिन्यू विद इट्स टास्क। कुछ नहीं है तो वो नहीं भेजेगा, वो अपना काम करता रहेगा। नाउ अगर कुछ है उसको भेजने के लिए तो डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड इज सेंट टू द प्रिंटर बफर फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी से जो भी डेटा, जो प्रिंटर की इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर की बफर मेमोरी में चली जाएंगी, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद क्या होगा, द कंटेंट्स ऑफ द प्रिंटर बफर आर एम्प्टीड टू द प्रिंटर्स एंड द डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। फिर उस बफर मेमोरी से डेटा कहाँ जाएगा, आपके प्रिंटर के पास चला जाएगा ना। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, ऑल डेटा सेंड टू द प्रिंटर। अगर सारा डेटा प्रिंटर को सेंड हो गया है, यस की कंडीशन है, तो अगर नो की कंडीशन है तो मीन वाइल द प्रोसेसर इज एबल टू कैरी आउट अदर टास्क वाइल द प्रिंटर बफर इज बीइंग एम्प्टीड। तो फर्ज करें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, मगर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि बफर मेमोरी जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो अगर लिमिटेड मेमोरी और वो फिल हो गई है तो पहले वो फिनिश होगी और फिर उसके बाद हो सकता है रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस आए। तो अब अगर यहाँ पे कंडीशन इसलिए लगाई गई है कि ऑल द डेटा सेंड टू द प्रिंटर्स, अगर वो प्रिंटर्स को सेंड हो गया सारा डेटा, अगर है तो यहाँ पे जाएगा, मगर नहीं है तो वो जो बफर के अंदर जो रिमेनिंग वो जो मेमोरी है उसको पहले खाली करेगा एंड इट विल गो बैक अगेन एंड इट विल कलेक्ट द रिमेनिंग डेटा and put it into the buffer. Now if there is no data sent to the printer is there, so it will go into the next step. When all the data has been printed, the buffer become empty and interrupt signal is then sent to the processor. Now अब होगा क्या कि coming back to this, अब बफर से सारी जो स्टेटमेंट है, ये सारी जो डेटा है वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। जब वो जैसे सारा गया, जैसे ही सारा डेटा गया, just let me tell you one thing, डेटा सारा जैसे ही गया और यहां से सारा डेटा खाली हो गया, अब लेट्स सपोज ये डेटा सारा खाली हो गया, तो अब डेटा जब सारा खाली हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन कि ये डिवाइस, ये जो डिवाइस है एक सिग्नल सेंड करेगी सीपीयू को। सीपीयू को क्या सेंड करेगी, और ये डिवाइस भी एक सिग्नल सेंड करेगी कि वी हैव फिनिश्ड द जॉब फिनिश्ड। दिस इज हाउ, एंड दैट सिग्नल इज कॉल्ड देन इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है, right. Thus this interrupt signal is sent to request more data to be sent to the printer. अगर कोई और डेटा भी चाहिए होगा तो वो फिर उसको अगेन रिक्वायर्ड करेगी। Now the current task is suspended while the interrupt is serviced. तो अब क्या हुआ कि अगर कोई टास्क नहीं है तो इंटरप्ट जो है क्या कहते हैं उसको सर्विस किया जाएगा और वो फिर दोबारा से अगेन ये प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। This is how the interrupt and buffer memory works. And I hope that you have understood it, and if you like this video, please comment on the section below and subscribe to my channel. Thank you so much.